Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the question answers of the chapter New Centers of Power, and first we are discussing the questions which are given in your textbook, and today we will discuss another question. We have discussed up to the question number 9, in which we have compared the economy of China, the previous economy which was command economy, and the present economy of China. And now today we will discuss another question. So the question is, how did the European Union countries resolve their post Second World War problem? Briefly outline the attempts that led to the formation of European Union. So the question is the Second World War proved very destructive for Europe. The continent, which was a continent of creditors, it turned into continents of debtors. आफ्टर दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो क्रेडिट देने वाला कॉन्टिनेंट था वो अब डेब्ट लेने वाला कॉन्टिनेंट बन गया बिकॉज ऑफ द लॉस विच वाज डन by this Second World War. So there was a need to reconstruct Europe, and we see the question is regarding कि कैसे उन लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सोचा. So the way through which they wanted to resolve their problems was to cooperate. उन्होंने आपस में कोऑपरेट करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का डिसाइड किया. जो भी उनके बीच की एनिमोसिटी थी, दे फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट देयर एनिमोसिटी, एंड एट दैट टाइम देयर प्रायोरिटी वाज ओनली टू रिकंस्ट्रक्ट देयर इकोनॉमी. कैसे इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, दैट वाज द ओनली कंसर्न, and they have made effort in that direction by cooperating with each other. Okay, and now the second question, उसी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि you have to outline the attempt that led to the formation of European Union. It means कि in this you have to give the timeline, the major important events that led to the formation of European Union. So the whole question deals with the formation of European Union only, because the problem which the Europe was facing after the Second World War, they solved this problem through cooperation, economic cooperation, political cooperation, social cooperation, all kind of cooperation was there, and lastly they formed this European Union. So इसमें you have to give this timeline only. Okay, I will write the points. The points are not, I'm not going to write the timeline because that will be wastage of time. It is given in your book very clearly. There will not be any trouble in writing the timeline. You will have to memorize the events and their years, important years. Okay, so now answer 10. In this your most important thing is कि through cooperation the European countries tried to resolve their problems. And then in next point you can write they got support from America. They got financial support from America.
and in this you can explain Marshall Plan also, and this is the way. And in the last point you can write that it was the formation of the European Union is the culmination of the European cooperation. Okay. कल्मिनेशन मीन्स क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल सबसे हाइट पे जब कोई चीज चली जाती है, चरम, जिसके लिए हिंदी में जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड चरम, चरम सीमा पे पहुंच जाना किसी चीज का। तो दिस इज द कल्मिनेशन, जो उनके बीच का जो कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ after the end of the Second World War, that culminated into this formation of European Union। वो जो cooperation start हुआ वो कहाँ जाके पहुँचता है, एकदम चरम, जो जहाँ सबसे ऊपर जो पहुँच जाता है, सबसे हाइट पे जो पहुँचता है, वो क्या इवेंट होता है, that is the formation of the European Union। and after this you will give the process of जो टाइमलाइन है हमारा यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन का, वो सारी टाइमलाइन जो है वो इन 3 मेजर पॉइंट्स हैं, जो कि हम कहेंगे कि इसने एफर्ट किया लाने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा ये हो जाएगा। ओके, एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द यूरोपियन यूनियन अ हाईली इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन यूनियन को कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाते हैं। तो इन दिस यू हैव टू राइट डाउन द फैक्टर्स सेपरेटली, लाइक यू हैव टू राइट द इकोनॉमिक फैक्टर्स, देन यू हैव टू राइट द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फैक्टर्स, देन यू हैव टू राइट द मिलिट्री फैक्टर्स। सो ऑल दीज शुड बी डिफरेंट, है ना, सेपरेट करके उसको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके, what are the economic factors which make it an influential organization? Okay, the first point is economic factors. Under this economic factor you have to give the data, like जो हमने GDP के बारे में देखा था कि यहाँ की जो GDP है वो बहुत ही हाई है। देन ट्रेड के बारे में भी जो है कि इट्स शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड इज 3 times लार्जर देन द यूएस से 3 times लार्जर है वर्ल्ड ट्रेड में इनका शेयर। उसके अलावा यूरो का जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, पावर बढ़ती जा रही है यूरो के बारे में, उसको भी हम देंगे। ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें हम जीडीपी को बताएंगे, जिसमें हम ट्रेड के बारे में, ट्रेड में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या शेयर है, वो बताएंगे। एंड देन वी विल से कि यूरो किस तरह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी के तरह से सामने आ रही है। ओके, एंड वी सी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ईयू का जो इन्फ्लुएंस है दैट इज एवर इंक्रीजिंग, वो बढ़ता जा रहा है। तो इन चारों पॉइंट्स को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, इट मस्ट बी इंक्लूडेड। इकोनॉमिक में हमारा इसका जीडीपी, देन वर्ल्ड ट्रेड में इसका क्या शेयर है, देन अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। एंड वी नो कि WTO में जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं उनका ही इन्फ्लुएंस बढ़ता है। ठीक है,
and then we will see the यूरो इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। यूरो जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है ईयू का। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स लिखने के बाद जो हम सेकंड फैक्टर देंगे वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फैक्टर्स में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं वी विल डिस्कस दोज। So in political and diplomatic factors, we can include that there are two countries of EU, that is Britain and France, which are the permanent members of Security Council. Other than this, there are many non-permanent members who are non-permanent members of Security Council who are the member of EU also. And other than this, there are some other political and diplomatic factors like the EU is playing a very important role in negotiations because ये अपने military power के not because of military power, it is using its influence in negotiations, क्योंकि इसके पास डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पावर है, इसलिए ये नेगोशिएशंस में भी इसका जो है वो अपर हैंड होता है। जैसे कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी बात हो रही है, तो ये जो ईयू की तरफ से नेगोशिएशन होता है उसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये भी इसके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फैक्टर्स में आएंगे। तो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फैक्टर्स में हमें एससी के परमानेंट मेंबर्स के बारे में लिखना है, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स, टू परमानेंट मेंबर्स आर देयर, ओके। एंड देन हमें लिखना है एससी के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उनमें भी बहुत सारे ईयू के मेंबर्स होते हैं। And then we have to write कि how the EU is playing a very influential role in negotiations. Other than these two factors, there is a third factor also, and that is the military factors. What we find कि EU जो है वो militarily भी it's a very powerful organization, because इसके जो combined forces हैं वो उसको मिला करके सारे जो EU के members हैं उन सब के force को अगर हम मिला दें तो this is the second largest in the world, ओके। एंड इसका जो मिलिट्री पे जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज ऑल्सो कंबाइंड एक्सपेंडिचर, वी आर कंसिडरिंग द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ ईयू। तो जो मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर कंबाइंड एक्सपेंडिचर होता है दैट इज ऑल्सो सेकेंड टू द यूएस। सबसे ज्यादा जो मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर करती है कंट्री वो यूएस है, और यूएस के बाद जो कंट्री करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, दैट इज ईयू। अदर देन दिस वी सी दैट जो इसके दो मेंबर्स हैं ब्रिटेन और फ्रांस, दे आर द न्यूक्लियर पावर्स, बिकॉज they are the permanent members, they are the nuclear powers, and they also have a nuclear arsenal of 550 nuclear warheads. इतने सारे nuclear warheads उनके पास हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अदर देन दिस स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी ईयू के जो कंट्रीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनका अचीवमेंट रहा है, एंड दैट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे मिलिटरी फैक्टर्स में आएंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड नाउ द थर्ड। सो दीज थ्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच मस्ट बी देयर इन योर आंसर, एंड अंडर दीज फैक्टर्स जो हमने बताया है वो सारी चीज़ें आंसर में रहनी चाहिए, ओके। देन थर्ड इज
मिलिट्री फैक्टर्स, इसमें हम देखेंगे सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है, और जब भी हम ईयू की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ईयू की हम कंबाइंड फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड combined expenditure on military is second. Combined expenditure on military is at the second position. Then two nuclear powers are nuclear. Okay, two nuclear power countries are there, and 550 warheads are there, nuclear warheads. So this is these are the important factors which come under military influence. So other than this, you can conclude with the power of the European Union is growing with the time, and it has emerged a very important power of the world. And now we have the next question. The next question is the emerging economies of India and China have great potential to challenge the unipolar world. Do you agree with the statement? Substantiate your argument. ठीक है, तो इसमें जो है ये दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज हम देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी रियल थिंग कि जो हमारा चाइना और इंडिया है, इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत ही बड़े पावर के फॉर्म में इमर्ज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इनकी जो इकोनॉमी है वो जिस तरीके से बढ़ रही है और उसके अंदर जो पोटेंशियल है फ्यूचर में वो जितना कुछ पा सकती है, उसके कारण ऐसा कहा जा रहा है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है जहाँ पर कि अमेरिका का डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है, दैट डोमिनेशन इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड बाय चाइना एंड इंडिया. तो वी कम्प्लीटली अग्री विद दिस अग्रीमेंट, विद दिस स्टेटमेंट. ये जो स्टेटमेंट है हम उसके साथ पूरी तरह से अग्री करते हैं कि जो इंडो चाइना का जो इंडिया और चाइना का जो ग्रोथ हो रहा है और इसके अंदर जो पोटेंशियल है, इट कैन पोज अ चैलेंज टू द यूनिपोलर world, and it is going to play a major role in Asian economy also. Okay, so how can we prove this? We can prove this by giving the data regarding, जैसे हमने इंडिया एज अ सुपर पावर पढ़ा, तो इंडिया के ग्रोथ रेट जैसे कि 2015 में 7.5% का ग्रोथ रेट था, उसको हम बता सकते हैं. देन चाइना की भी जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है. देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि हमने प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को लाया, जिसके कारण बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और इकोनॉमिक जो है हमारी वो बहुत ही ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ चली है. देन चाइना के बारे में स्पेशली हम दे सकते हैं कि उन्होंने जो सेज ओपन किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए हैं जहाँ पर एफडीआई जो है वो बिल्कुल ही ईजिली हो सकती है विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
और आज के समय में चाइना जो है वो FDI का बहुत बड़ा अट्रैक्शन सेंटर बना हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कई सारे जो दुनिया की कंपनीज हैं वो वहाँ पर स्टैब्लिश हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच वी कैन गिव in order to substantiate our argument कि yes, these two countries are posing threat to the unipolar world। तो जो भी फैक्ट्स हमने देखा है, चाइना एज अ सुपर पावर, इंडिया एज अ सुपर पावर, उन सारे को ही इसमें हमें इंक्लूड करना है। ओके, तो इसके आंसर में आपको this is your question number 12. So how can you substantiate your argument that these countries pose a threat to unipolar world? We can substantiate our argument by growth rate of Indian and Chinese economy. Then in the next point we can write the new economic policy. And what is this new economic policy? It's about globalization, privatization and liberalization. These are the three keywords जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हमने भी अडॉप्ट किया और चाइना हैज़ ऑल्सो अडॉप्टेड दिस न्यू पॉलिसी। एंड इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट दिया गया इम्पोर्टेंस वो यही GPL, globalization, privatization and liberalization. And because of this globalization, privatization and liberalization, what happened that our growth rate जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। यही उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल रीज़न है। ओके, एंड देन वी कैन गिव कि किस तरह से चाइना में FDI को किस तरह से वो अट्रैक्ट करता है। पूरी दुनिया के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो सेंटर बना हुआ है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन का सेंटर बना हुआ है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और बिकॉज ऑफ मार्केट, इंडिया चाइना दोनों ही, चाइना इज द नंबर 1 पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया इज एट द नंबर 2। तो ये दोनों जो है वो मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं और इस कारण कंपनीज जो है वो अट्रैक्ट होती हैं। तो इस तरह से ये दीज ऑल थिंग्स आर इन फेवर ऑफ आर इकोनॉमी। देन वी कैन गिव कि हमारे जैसे इकोनॉमी में हम इंडिया का अगर हम लेना चाहें तो इसमें एक पर्टिकुलरली इंडिया के लिए होगा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर। ओके, तो हमने जो भी इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर और चाइना एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर में जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इकोनॉमिक पॉइंट्स, बिकॉज द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ओनली इकोनॉमिक आस्पेक्ट। तो उसमें हमें सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें हमारे इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, एंड नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्रीज ले इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड strengthening of regional economic organization. Justify the statement. So first of all, you should understand the question, understand the statement, then only you can justify. So what is the question? The question is कि जो आज के समय में हम रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन बनी, जैसे आसियान है, देन सार्क है। तो ये जो रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है
these are very important for the peace and prosperity of the countries. The peace and prosperity of countries lay in the establishment and strengthening of regional economic organization. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कंट्रीज की प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी. प्रॉस्पेरिटी, हाउ द प्रॉस्पेरिटी विल कम टू अ कंट्री बाय इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे अचीव करेंगे? वी कैन अचीव इट ऑन आवर ओन ऑल्सो, बट अगर हमको अपने नेबर कंट्रीज जो है उनके साथ अगर कोऑपरेट हम करते हैं, मिलकर के अगर हम काम करते हैं, तो हमारी जो इकोनॉमी होगी वो ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगी. एज वी सॉ इन द केस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो आसियान है, वहाँ पर जो कंट्रीज हैं वो आपस में इकोनॉमिकली कोऑपरेट कर रही हैं थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन आसियान. तो इस कोऑपरेशन से क्या हो रहा है कि वो जो कंट्रीज का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी के लिए हमारा, प्रॉस्पेरिटी का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो रहा है तो ग्रोथ को हम अचीव कर सकते हैं. और इसी के साथ साथ पीस भी जुड़ा हुआ है. हाउ पीस इज रिलेटेड टू दिस इकोनॉमिक ग्रोथ? इट इज कनेक्टेड. लाइक देखो, जैसे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपस में कोऑपरेट करना स्टार्ट किया. ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया. जैसे EU बना, जैसे हमारा आसियान बना, जैसे सार्क बना, फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा पर्पस है, बट अब यहाँ पर अगर दो नेबरिंग कंट्रीज जो कि दोनों ही मेंबर हैं इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है. ठीक है, तो जब कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, रिगार्डिंग बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है, किसी भी तरह का डिस्प्यूट अगर दो कंट्री के बीच में आता है, तो बोथ द कंट्रीज विल ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल. क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है, दैट प्रॉब्लम शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द इकोनॉमिक कोऑपरेशन. अगर ये प्रॉब्लम एस्केलेट करता है तो क्या होगा? उनके बीच का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, वो खत्म होने लगेगा और इकोनॉमिक लॉस होने लगेगा. तो दिस इज द थिंग कि ये आज के समय में ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमारे बीच का इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो सबसे मजबूत होता है. दैट इज द मोस्ट स्ट्रांग रिलेशनशिप. और जब हमारा इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रांग होता है तो उसके साथ साथ हमारा अदर रिलेशंस जो है वो भी स्ट्रांग होता जाता है. क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि रिलेशन हम खराब करें. बिकॉज अगर किसी भी कंट्री के साथ हमारी रिलेशन खराब होती है बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ अनदर पॉलिटिकल रीजन, अगर उसके साथ रिलेशन हमारा खराब हो रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा. आज हमारे चाइना के साथ काफी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी चाइना से जो हमारा ट्रेड रिलेशन है वो बना हुआ है. और ये जो ट्रेड रिलेशन बना हुआ है दैट इज पॉजिटिव ऑल्सो, क्योंकि इस ट्रेड रिलेशन के कारण हो सकता है कि हम प्रॉब्लम्स जो है वो पीसफुली रिजॉल्व कर दी जाए, हम वॉर की तरफ न जाए. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कि किस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो कंट्रीज हैं उनको वहाँ पर पीस के लिए, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएं और उनको स्ट्रांग बनाया जाए. नॉट ओनली टू एस्टैब्लिश बट टू मेक देम स्ट्रांग ऑल्सो. Then only there can be peace, then only there can be prosperity. Okay, तो इस क्वेश्चन के आंसर में यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल किस तरह से जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो आपस में उन्होंने कोऑपरेट किया इकोनॉमिक फ्रंट पे, और उस तरह से इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन से उनको प्रॉस्पेरिटी आई और साथ ही साथ पीस भी आया. ठीक है, तो इसमें हमारा जो दो मेन एग्जाम्पल होगा वो EU एंड आसियान होगा. बिकॉज वी नो कि सार्क में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. दैट इज द मेन ऑब्स्ट्रक्शन इन द ग्रोथ ऑफ सार्क. तो सार्क का यहाँ पे हमें एग्जाम्पल नहीं देना है. ये जो क्वेश्चन है ये दैट इज कम्प्लीटली सुटेबल फॉर यूरोपियन यूनियन एंड आसियान.
ठीक है। तो इसमें आप को यही देना है कि जो चीजें हमारी इसमें आनी चाहिए वो हम ये बताएंगे कि किस तरह से जो यूरोपियन यूनियन है उसमें हमने देखा कि कोऑपरेशन हुआ और क्या उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ। देन आसियान की कंट्रीज ने आपस में कोऑपरेट किया और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। ओके, सो आवर आंसर शुड इंक्लूड prosperity, comes through economic cooperation. And in order to cooperate, regional organization in this you can give the example of EU and ASEAN. Regarding EU you can say कि किस तरह से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स थे और फिर भी वो प्रॉब्लम्स सारे के सारे सॉल्व हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में कोऑपरेट किया। न सिर्फ उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया बल्कि वहां पे पीस और प्रॉस्पेरिटी भी आई। दिस इज रिगार्डिंग EU. What was the situation after Second World War and how that problem was solved? And then you have to give your answer regarding ASEAN की जो ASEAN के member countries हैं, they are the very small countries of the world. Still, they are the organization is considered as a new center of power because of their ग्रोइंग पावर। क्यों पावर उनका ग्रो कर रहा है? क्योंकि वो आपस में बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आंसर। नाउ वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास।